हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। इवनिंग सर। तो आज स्टार्ट करेंगे हमारा रिवीजन का 4th लेक्चर। इससे पहले रिवीजन में हम लोग पढ़े सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, दोनों के फॉर्मूले। आज रिवीजन करेंगे ओम्स लॉ का। आज रिवीजन करेंगे ओम्स लॉ का। So very first question, that is, what is Ohm's law? What is Ohm's law? चलो जल्दी जल्दी बता दो, what is Ohm's law? Starting with Ristam. So according to Ohm's law, when Speak. according to Ohm's law, the potential difference of a circuit is directly proportional to the flowing current in the circuit. Anything more? Is there any condition for that? Okay. Moving to next, that is Nikhil. Okay. Next, Khushi. Sir, at constant temperature and normal physical condition, the voltage across the conductor is directly proportional to the current flowing through it. Okay. Next is Ayush. Sir, the Ohm's law states that the current flowing in a conductor is directly proportional to the applied potential across the ends of conductor, with temperature and material should remain constant or same. Okay. Very simple. Definition was correct. रिस्तम तुम्हारा भी डेफिनेशन सही था, बट कंडीशन बताना भूल गए थे बस। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर is directly proportional to current, provided temperature and physical conditions should remain same. Temperature and physical conditions should remain same, then V is directly proportional to I. And we know that V is equal to Ri, where R is Proportionality constant. Where R is proportionality constant, also known as resistance. Am I right? Yes, sir. Now, question arises, beta. If V is directly proportional to I, then can we write that I is directly proportional to V? And if not, then why? Because क्वेश्चन ये है कि अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, तो क्या हम I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के लिख सकते हैं? अगर नहीं लिख सकते बेटा, तो क्यों नहीं लिख सकते, उसका रीजन बताओ। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर से खुशी से। चलो खुशी। So because the current in a circuit is because of voltage and we cannot generate voltage through current. We can apply voltage. पहले क्वेश्चन बेटा ये है कि क्या ये लिखना सही है या गलत है? Sir, no sir, because उससे condition wrong हो जाएगी. Because sir, since
current in a circuit is because of voltage or potential difference, and it isn't possible that we can generate current without the help of potential difference. So potential difference will rise, then only the current will rise or increase. Okay. Next is Ayush. Yes, sir. Sir, we can't write it like this, sir, because we can control potential difference, not current. Yes, sir. Okay. Ristam. So because the current, it is not possible to control the current into the circuit. You can We control cannot only write this potential. relation because it is not possible to control current. It is possible to control potential difference. Answer is absolutely correct. And after that, we have studied that R is resistance. And resistance के बारे में तो पढ़ ही चुका, शायद ये हो चुका था क्या? हौसला हो गया था. चलो कोई बात नहीं. आप चलेंगे बेटा क्वेश्चन. तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस तुम लोग के लिए लेके आया हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बोर्ड. सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए. फर्स्ट क्वेश्चन. थ्री रेजिस्टर्स 5 ohm, 8 ohm and 12 ohm are connected in series. Then find current and potential difference across 12 ohm resistor. चल, तो पहले तुम लोग को टाइम देते हैं. सॉल्व करिए, कमेंट करिए आंसर, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूंगा. So potential difference, फिर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस या फिर करंट कुछ दिया ही नहीं. हाँ, एक कमी थी क्वेश्चन में, बैटरी नहीं थी, बैटरी लगा दिया गया है. अब आप लोग कमेंट करो जल्दी जल्दी, इसका आंसर क्या होगा. रिस्तम आंसर आ गया है. नाउ और लोगों को देखते हैं. खुशी,
निखिल, एंड आयुष। चलो अब सॉल्व करते हैं इसे। As we know that all three resistors are in series, means सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा, and these are connected across 12 volt battery. These are connected across 12 volt battery. This is 5 ohm, 8 ohm, and 12 ohm. And across 12 ohm, we have to calculate potential difference. 12 ohm के across हमें क्या calculate करना है? Potential difference. Now, पहले करंट पता लगा, तो करंट के लिए टोटल पोटेंशियल तो दिया है 12 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो RT, कितना होगा? I प्लस A प्लस 12, 12 20 25 ohm. Now total current is equal to V upon R. Total V 12, total current 25. तो क्या हो जाएगा? 0.48 एम्पियर। 0.48 एम्पियर मीन्स ये आंसर केवल आयुष और खुशी का था। वेरी गुड बोथ ऑफ यू। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12। V निकालना है 12 ओम के अक्रॉस। V कैसे निकलेगा? V इज इक्वल टू किसके अक्रॉस है? 12 ओम के, तो R आई है, फिर IR होता है, तो I कितना है? 0.48, 0.48 इंटू R कितना है बेटा? 12, इंटू करोगे तो V कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 6 5.76 वोल्ट, 5.76 वोल्ट। एंड अगेन करेक्ट आंसर किसका है? आयुष और खुशी का। वेरी गुड। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे नहीं आया आंसर लिख लो, सॉल्व कर लो, सॉल्यूशन है आपके पास और समझ लो अच्छे से। जहां दिक्कत हो पूछ लो मुझसे। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड equivalent resistance, equivalent resistance, resistance when following are connected in series. When followings are connected in series, कौन कौन कनेक्टेड है बेटा? पहला 1 ohm is connected with 10 to the power 6 ohm. सॉरी सीरीज पे यहां पर पैरेलल कर लो, अब सही है। 1 ohm is connected with 10 to the power 6 ohm. And second question is 1 ohm is connected with 10 to the power 3 ohm, and this is connected with 10 to the power 6 ohm. तो चलो सॉल्व करिए, आंसर कमेंट करिए। सर हाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है या फिर फर्स्ट और सेकंड का सेपरेटली? नहीं, ये अलग क्वेश्चन है बेटा, ये अलग क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन के अलग अलग आंसर आएंगे।
एक क्वेश्चन का दो पार्ट है बेटा, ये दो पार्ट। चलिए सॉल्व करिए फर्स्ट, जल्दी जल्दी सॉल्व इट। सॉल्व इट, जल्दी सॉल्व करो। रिस्तम का आंसर आ गया बेटा, खुशी का भी आंसर आ गया। रिस्तम एंड खुशी दोनों का आंसर आ गया। देखते हैं और लोगों का भी। चल जल्दी से कमेंट करो, आगे सॉल्व करें, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं। चलो स्टार्ट करें। आ रहा है आंसर और दे रहे हो? Yes, sir. चल फर्स्ट टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। कनेक्शन कैसा है बेटा? पैरेलल। तो फॉर्मूला 1 अपॉन आर टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। R1 क्या है? 1 ओम। R2 क्या है? 10 टू द पावर 6 ओम। तो R1 की जगह पर 1 हो गया, R2 की जगह पर 10 टू द पावर 6 हो गया। आयुष ओके। अब देखो बेटा 1 अपॉन 1 का आंसर तो 1 ही आता है। 10 टू दी पावर 6 प्लस में ऊपर गया माइनस है, प्लस 10 टू दी पावर -6। 1 तो 1 ही है बेटा। 10 टू दी पावर -6 को ऐसे लिख सकते हो 0.0000001, 0.0000001, और इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 1.000 0.001। ये है बेटा 1 अपॉन आर टोटल का आंसर। अब क्या करना है तुम्हें? आर टोटल निकालना है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा? आर टोटल इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानोगे, पलट दो, 1 डिवाइडेड बाई 1.0000001। अब बस इसी को सॉल्व कर रहे हैं, इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। करना क्या है? डेसिमल हटाओ पर जीरो बढ़ाओ, तो ये मिल जाएगा बेटा 0.99 करके ओम, 0.99 करके। ठीक है निकल, बहुत बढ़िया। आयुष फर्स्ट आंसर क्या है बेटा? 0.99। अब आ जाओ सेकंड आंसर की तरफ। सेकंड आंसर में 3 रेजिस्टर है बेटा। अगेन आर टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और इसमें भी R1 1 है, R2 10 टू दी पावर 3 है, और R3 10 टू दी पावर 6 है। 1 को 1 ही लिखोगे, इसे लिख सकते हो बेटा 0.001
और इसे लिख सकते हो 0.000001। इन सबको ऐड कर लो, ये 1/r टोटल की वैल्यू होगी, याद रखना। इन सबको ऐड करने पे आएगा 1.001001। आर टोटल फिर से बराबर किसके हो जाएगा, 1/1.1001। फिर सॉल्व करोगे और फिर से तुम्हें क्या मिलेगा, 0.9 के आसपास ही मिलेगा, 0.9 ओम। क्लियर हो रहा है? तो सबसे करेक्ट आंसर जो है बेटा वो है खुशी का। वेरी गुड खुशी, दोनों आंसर तुम्हारे सही हैं। और निखिल के केवल एक आंसर सही है, आयुष का कुछ भी नहीं सही है, रिस्तम एक आंसर सही है। तो सबसे करेक्ट आंसर खुशी का। सर वो अप्रॉक्स वैल्यू सही नहीं रहेगी। अप्रॉक्स क्या लिखोगे, जब 1 ही लिखना था तो तुम पैरेलल क्यों किए? ठीक है, और पैरेलल में तुम भूल जाते हो कि पैरेलल कनेक्शन में जो रिजल्टेंट आता है वो सारे रेजिस्टेंस से छोटा होता है। देखो 1 से भी छोटा है, 10⁻³ से भी छोटा है, 10⁻⁶ से भी छोटा है। तो ये याद रखना, इन पैरेलल कनेक्शन द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस शुड बी स्मॉलर देन एवरी रेजिस्टेंस। हर एक रेजिस्टेंस से रिजल्टेंट छोटा होना चाहिए। क्लियर है? रिस्तम समझ में आ रहा Yes. है? यस सर। Now we will move to our next question. Question number 3. Find number 1 highest, number 2 lowest resistance secured by joining 4 ohm, comma 8 ohm, comma 12 ohm and 24 ohm resistors. चल जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कर दो। जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए बेटा। खुशी, चल नेक्स्ट रस्तम, आयुष, इस बार आंसर सबके मैच कर रहे हैं। चलो चले पहले हाईएस्ट पे बात करेंगे बेटा। जब भी हाईएस्ट रेजिस्टेंस निकालना होता है तो हम रेजिस्टेंस को किस कनेक्शन में लगाते हैं, जल्दी से बोल दो। किस कनेक्शन में लगाओगे रेजिस्टेंस को अगर हाईएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो? Series. सीरीज कनेक्शन, बहुत बढ़िया। तो आर टोटल अगर निकालना है तो सीरीज कनेक्शन में सबको ऐड कर लेना है, 4 + 8 + 12 + 24, हाईएस्ट इन सीरीज कनेक्शन।
हाईएस्ट इन सीरीज कनेक्शन कितना हो जाएगा 20 20 40 44 प्लस 48 ओम हाईएस्ट हो गया सबके आंसर सही है अब लोवेस्ट पे आ जाओ बेटा लोवेस्ट कौन से कनेक्शन में रहेगा पैरेलल पैरेलल वेरी गुड इन पैरेलल कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन में 1/r टोटल is equal to 1/4 plus 1/8 plus 1/12 plus 1/24 सबका एलसीएम लिया आया 24 4 6 जा 24 8 3 जा 24 12 2 जा और 24 1 जा 6 3 9 1 10 10 to 12 कितना आएगा बेटा 12/24 कैंसिल करोगे 12 1 जा 12 2 जा यहां से क्या मिल गया यहां से मिल गया कि 1/r टोटल इज इक्वल टू 1/2 और r टोटल पलटने पे क्या मिल जाएगा 2 ओम के बराबर r टोटल इज इक्वल टू 2 ओम क्लियर हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन और यही तुम लोग के लिए होमवर्क देंगे और क्लास अब इसी क्वेश्चन से एंड होगी आज के लिए क्वेश्चन नंबर 4 हाउ कैन 3 resistors कौन कौन से बेटा 2 ohm 3 ohm and 6 ohm should be connected to get number 1 4 ohm नंबर 2 1 कैसे कनेक्ट करें कि ये रेजिस्टेंस का टोटल रेजिस्टेंस एक बार 4 ओम आ जाए और दोबारा 1 ओम आ जाए तो आपको इसे कनेक्शन दिखाना है डायग्राम में और उसका फोटो क्लिक करके आपको भेजना है सो आज के लिए थैंक यू कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पे Thank you, sir. Thank you.